नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो गुरदासपुर के गांव चट्ठा के रहने वाले नायक मनदीप सिंह को, जो पुंछ में हमले में दौरान शहीद हुए थे, जहां शहीद के लिए अंतिम अरदास की गई। शहीद की अंतिम अरदास से पहला श्री अखंड पाठ साहब का भोग मनदीप के घर हुआ, जहां हाजिरी भरने के लिए और मनदीप सिंह के परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ मंत्री पंजाब तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और विधानसभा स्पीकर राणा केपी पहुंचे। इस दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मनदीप की अंतिम अरदास में वो शामिल हुए और इस परिवार के लिए बड़ा दुख है। छोटे बच्चे हैं और इस परिवार के साथ पंजाब सरकार हमेशा खड़ी है। और परिवार के एक मेंबर को नौकरी और मदद के तौर पर 50 लाख रुपए दिए गए हैं और इसके साथ ही परिवार की मांग पर एक यादगारी गेट और यादगारी खेल स्टेडियम बनाने की मांग रखी है, जिसको उनकी सरकार पूरा करेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि वो इन जवानों के बलिदान को नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। परिवार ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। हमने सानू यही बोलिया कि ਤੁਹਾਡੀ पूरी तो पूरी हेल्प की जाएगी। ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ हाँ जी, उन्होंने एक स्टेडियम ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ हाँ जी, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਦਾਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਡਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद पंजाब में बयानबाजी तेज हो गई है। चंडीगढ़ में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अवसरवादी बताया और उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा अपने परिवार, अपने साथियों और अपने लिए ही सोचा। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि साल 1977 में उनके पिता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ज्वाइन कराई थी और इसके बाद 1980 में कैप्टन अमरिंदर सिंह सांसद बने थे। इसके अलावा पूर्व कांग्रेसी नेता संजय गांधी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री दरबार सिंह के खिलाफ हटाकर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जिस परिवार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 9.5 साल तक पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, आज भी उसी के खिलाफ बोलकर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। कैप्टन साहब ने जो स्टेटमेंट दी आ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ
ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਕ ਸਟੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਾंग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन साहब ने जो स्टेटमेंट दी है। और वहीं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी लॉन्च किए जाने की चर्चाओं के बीच अकाली दल ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जालंधर दौरे पर आए वरिष्ठ अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी बनाने की घोषणा और बीजेपी के साथ गठबंधन पर सकारात्मक रुख से साफ हो गया है कि कैप्टन और बीजेपी पहले से ही मिले हुए थे। बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद से हटाए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने की ओर संकेत दिया है। उन्होंने बीएसएस को और अधिकार दिए जाने के मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताने में मदद की थी। हरसिमरत बादल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि सुधार कानूनों पर बनी कमेटी के 2019 तक मेंबर रहे और उनकी मर्जी से ही ये कानून पास किए गए थे। उन्होंने कहा कि कैप्टन और भाजपा दोनों ने ही पंजाब का नुकसान किया है। बीजेपी ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਫਲਾਂ ਟਿਮਕਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੁਤੰਤਰ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर पुष्प अर्पित किया और सभी देश और प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवर पाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और भवानीखेड़ा के विधायक विशंभर सिंह ने फूल भी चढ़ाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से इनकार किया है। चंडीगढ़ में जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, ज्यादा खाद भी केंद्र से मंगवाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव जीतने का दावा किया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। और सरसों की बिजाई का सीजन चल रहा है, लेकिन हरियाणा के कई इलाकों में किसान मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, उनसे बात करते हैं। सर, बिजाई का सीजन चल रहा है लेकिन कई स्थानों पर जो है डीएपी की किल्लत है, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ी है, मारामारी है। ये अफवाह फैला करके कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं इस स्थिति बना करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं हरियाणा के किसानों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डीएपी की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में डीएपी है और धीरे धीरे करके और आ जाएगी। हमें जो है पिछले अक्टूबर के महीने में पूरे हरियाणा में लगभग 20-22 लाख बोरी की खपत हुई थी। उतनी डीएपी हमारे पास 19 तारीख तक आ चुकी है। हमने 16 रैक ट्रेन के और मांग रखे हैं, आने वाले दिनों में आएंगे। और कल 2 रैक आएंगे, एक सात रोड में, एक चुखोरी में, परसों रैक आएगा झज्जर के अंदर, और इसके अलावा भी हर दूसरे तीसरे दिन रैक आएगा। तो किसान भाइयों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप, इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको डीएपी उपलब्ध नहीं
सर अगर बाजरे की बात है तो सरकार ने उसको भावांतर भरपाई योजना में शुरू किया है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो बाजरे का मार्केट रेट बहुत कम है, किसानों को जो है MSP जो सरकार ने डिसाइड किया वो नहीं मिल रहा है। देखिए 600 रुपये की भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए, वो किसान हित में है और इससे हमने 50 करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधा डाल भी दिया है। आने वाले दिनों में हम 400-500 करोड़ रुपये और डाल देंगे। किसान को बगैर बाजरा मंडी में लाए, बगैर बेचे, बगैर कुछ सबूत दिखाए सीधा पैसा मिल रहा है, ताकि किसान अपना आगे की खाद का, बीज का, जुताई का खर्चा दे सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया है कि 1650 रुपये से अगर बाजरा कहीं नीचा बिक रहा है तो हमारी एजेंसियाँ उसको इस रेट से खरीद लेंगी। तो किसान को 22.5 रुपये की हम गारंटी देते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से हमारी सरकार के वक्त में कपास का भाव बहुत महंगा है, सरसों का भाव बहुत महंगा है और जिनसे MSP से ऊपर है, आप निश्चिंत रहें, बाजरा भी आपका ये इसी तरह से संयम रखोगे तो 1800, 1700, 1900, 2000 रुपये तक बिकेगा और आपको इसकी बजाय MSP के बजाय ऊपर ही पैसा मिलेगा। सर एलनाबाद उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, वो किस स्थिति में फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं? अब एलनाबाद उपचुनाव में सबको पता है कि हमारी सरकार है, 3 साल बाकी हैं, हौस कराने के इच्छुक हैं, इसलिए उनको एक मौका मिल गया है कि अपना नुमाइंदा भेज करके एलनाबाद वासी जो हैं अपनी विकास करवाएंगे, सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है उसके सर इसी महीने की 27 तारीख को हरियाणा की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं। कैसे देखते हैं 2 साल को आप एक कृषि मंत्री होने के नाते अपने विभाग की तरफ से? देखिए, दुनिया के अंदर से तो जो पिछला साल था बड़ा अभूतपूर्व रहा है कि पेंडेमिक आ गया, सारी व्यवस्थाएं टूट गई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इसमें एक चमकता हुआ सितारा था तो कृषि क्षेत्र था। खासकर देश के किसानों ने और हरियाणा विशेष तौर पर जो उत्पादन किया है वही है, मैं इनको नमन करता हूं, इनका धन्यवाद। और कृषि ने हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है, उसने काफ़ी देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने प्रदेश में DAP की किल्लत से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को बिजाई के सीजन में DAP की कोई किल्लत। बाजरे कहा कि प्रदेश में 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर यदि किसी का बाजरा बिकता है तो वहाँ पर जाके सरकार है जो वो खरीद करेगी। साथ ही इलाहाबाद उपचुनाव में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की भी जीत की जो है दावा किया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर शर्मा के साथ OP शर्मा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।